میرا دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ بھینس کی قربانی کے اوپر، اس پر ابن منذر رحمہ اللہ کا ایک قول موجود جس کو غلام مصطفیٰ زیر منپوری صاحب نے بھی نقل کیا تھا کہ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ بھینس کی قربانی پر امت کا اجماع ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک چیز اور کہ حتیٰ کہ جو پرانے جو اہل حدیث تھے جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رحمہ اللہ، باقی جتنے وہ لوگ بھی 3 دن سوری وہ لوگ بھی کیا بھائی بولتے ہیں آپ کے بھینس کی بہت سارے قربانی کے سوالات ہو قائل گئے، تھے. یہ آپ کا آخری سوال ہے، یہ آپ کا لاسٹ جی جی سوال ہے، بالکل، ٹھیک ہے؟ آخری سوال ٹھیک ہے. یہ وہ بھی بھینس کی قربانی کے اجماع ہے اس کے اوپر، کیونکہ 50 سال پہلے کوئی عالم نہیں ہے جو بھینس کی قربانی کو حرام کہتا ہوں یا ناجائز کہتا ہوں. دیکھیے بھینس کی قربانی کے مسئلے میں قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہے، حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، نہ تو قرآن کی کسی اجماع آیت میں ہے کہ بھینس کی قربانی کرو، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی صحابی سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ بے سند مطلب بے سر پیر کی ہے، نہ تابعین میں سے کسی سے ثابت ہے، تابعین میں سے کسی ایک سے بھی جو ہے قربانی ثابت نہیں ہے بھینس کی قربانی، نہ اتباع تابعین میں سے کسی سے ثابت ہے. ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. وہ کیا صحابی ہیں تابعی ہیں، کون ہے وہ؟ احمد بن حنبل صحابہ تابعین نے لے نہیں، لیا. پہلی بات یہ کہ انہوں نے کیا کہا وہ تو الگ بات ہے. پہلی بات وہ صحابہ تابعین اتباع تابعین میں سے آتے نہیں. دوسری بات جو انہوں نے کہا ہے وہ زکوٰۃ کے مسئلے میں کہا، ابھی میں نے فیس بک پر پوری پوسٹ ڈالی ہے، انہوں نے زکوٰۃ کے مسئلے میں کہا ہے کہ زکوٰۃ کے مسئلے میں بھینس کو گائے کے ساتھ ملائیں گے، اس پر امت کا اجماع ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں یہ نہیں کہا ہے کہ بھینس کی قربانی پر اجماع ہے، یہ بات ان کی نہیں ہے. آج کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں، سنو میری بات سنو، آپ میری بات سنو، پوری امت میں سے کسی ایک بھی معتبر محدث امام فقیہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ بھینس کی قربانی پر اجماع ہے، میری معلومات کے حد تک. بھائی فقہی دنیا ایک سمندر ہے، جتنے بھی اقوال خاص طور سے اس سال جتنے لوگوں نے پیش کیے ہیں سب کا میری وال پہ جائیے، فیس بک پر میری وال پہ جا کے چیک کیجیے، سب کا جواب میں نے دے دیا ہے کہ کہیں بھی اجماع کا نہیں ہے، کوئی بھی اجماع کا قائل نہیں ہے. امام احمد رحمہ اللہ، سنیے، یہ جتنے لوگ حوالے دیتے ہیں نا اجماع کا، ان سب نے جو یہ کہا ہے کہ بھینس کو ملایا جائے گا بقر کے ساتھ گائے کے ساتھ، ان سب نے یہ بات زکوٰۃ سے متعلق کہی ہے، سب نے. تو یہ ساری باتیں تو غیر متعلق ہوں گی. صرف ایک قول جو امام احمد رحمہ اللہ کا ہے، امام احمد رحمہ اللہ کا قول کیا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا بھینس میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، یہ صحیح سند سے ثابت ہے. امام احمد رحمہ اللہ سے ان سے کسی نے پوچھا کیا بھینس کی قربانی میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں خلاف نہیں جانتا، اس کے خلاف مجھے علم نہیں ہے. وہ کہہ رہے اس میں اختلاف میں نہیں جانتا. یہاں پہ 2 پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ یہاں ایک جزئی مسئلے میں بات کر رہے ہیں. کس مسئلے میں؟ کہ قربانی، بھینس کی قربانی میں 7 لوگوں کی شرکت، اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس میں اختلاف نہیں جانتا. لیکن ان کا یہ کہنا کہ اس میں اختلاف نہیں جانتا میں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بھینس کی قربانی کے بارے میں بھی یہی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. میں اس کو مثال سے سمجھاؤں. ابھی جیسے شیخ سرفراز نے کہا، ہم سب نے سنا ابھی، کہ عقیقے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقیقے کے قائل نہیں ہیں. عقیقے کے مسئلے میں ایک اختلاف کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقیقے کے قائل نہیں ہیں. ایسے بعض اہل علم لڑکی کی طرف سے عقیقے کے قائل نہیں. عقیقے میں یہ 2 بنیادی اختلاف ہے. ایک کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے علی الاطلاق عقیقے کے قائل نہیں ہیں، اور بعض اہل علم عقیقے کے قائل ہیں لیکن لڑکی کے عقیقے کے سلسلے میں اس کے قائل نہیں. لیکن آپ امام ابن القطان رحمہ اللہ کی کتاب اجماع جا کے دیکھیں، ان کی کتاب یا کسی اور کی کتاب، تھوڑا سا میں بول رہا ہوں، تو اجماع پہ جو کتاب ہے انہی میں سے غالباً امام ابن القطان رحمہ اللہ کی کتاب ہے. میں انشاءاللہ پوسٹ ڈال دوں گا فیس بک پر، آپ اس میں پڑھ لیجئے گا کلیئر کر کے. غالباً امام ابن القطان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر جڑواں بچے پیدا ہوں تو ان کے عقیقے کے بارے میں کسی اختلاف کو نہیں جانتا. جڑواں بچے پیدا ہوں تو ان کے عقیقے کے بارے میں، یعنی ان میں سے ہر ایک کی طرف عقیقہ کیا جائے گا، اس مسئلے میں کوئی اختلاف میں نہیں جانتا. اب وہ جو جزئی مسئلے میں انہوں نے کہا کہ جڑواں بچے کے عقیقے کے بارے میں، ہر ایک طرف سے عقیقے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں جانتا، تو اس کو بنیاد بنا کے ہم یہ کہہ دیں کہ عقیقے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. نفس عقیقے کی مشروعیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک طرف 2 طرح کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پوری طرح سے خارج کریں عقیقے کو کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں لڑکیوں کی طرف سے عقیقہ نہیں ہے، کوئی اختلاف موجود ہے. لیکن یہ کہہ دینے سے
कि जवा बच्चे में से हर एक की तरफ से अकीका किया जाएगा, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये कह देने से ये लाजिम नहीं आता कि अकीके में भी वो इत्तेफाक नकल कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट है कि इमाम अहमद रहमुल्लाह ने भैंस की कुर्बानी के बारे में ये बात नहीं कही है, उन्होंने 7 लोगों की शिरकत के बारे में कही है, बिल्कुल ऐसे जैसे इमाम इब्न क़त्तान रहमुल्लाह ने जुड़वा बच्चे के बारे में बात कही है, उन्होंने अकीकी के बारे में नहीं की कि सबका इत्तेफाक है। ठीक है। दूसरा मसला ये है कि इमाम अहमद रहमुल्लाह ने जो ये कहा ना कि मैं इख्तिलाफ नहीं जानता, ये इजमा हिकायत, इजमा को बयान करने का सीगा नहीं है। और बिलखुसूस इमाम अहमद रहमुल्लाह तो सख्त फटकार लगाते थे ऐसे लोगों पे जो इख्तिलाफ से नावाकिफियत की बिना पर कह देते थे इजमा है, बल्कि इमाम अहमद रहमुल्लाह ने उसको झूठ करार दिया है। आप मेरी पोस्ट जाके पढ़िए, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो सारी बातें किताबों में भी आ जाएंगी। आप मुझे बात बता इमाम अहमद रहमुल्लाह ने झूठ करार दिया कि अगर कोई इख्तिलाफ से ला इल्मी की बिना पर इजमा का दावा करता है वो झूठ है। सिर्फ झूठ नहीं बल्कि ऐसे लोगों के इस अमल को जहमिया और जो है मुअतज़िला से उनके जो है लोगों से तशबीह दिया। तो ये कोई तवाज़ो की बात, सिर्फ तवाज़ो की बात नहीं मसला है कि तवाज़ो में ऐसा है वो बोल रहे हैं, नहीं, वो फटकार लगा रहे हैं ये झूठ है। ऐसा कहने वाला जहमियों के मुशाबे है, ऐसा करने वाला मुअतज़िला के मुशाबे, इतनी सख्त ताबीर उनकी, और आप कहेंगे इतने, वो इस बात के कायल ही नहीं है कि अदम इख्तिलाफ की वजह से आप इजमा का दावा कर लें। तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह के हवाले से आपने इजमा का दावा नहीं किया। दो पॉइंट, एक तो उन्होंने इजमा का दावा नहीं किया, दूसरा उन्होंने एक जुज़ई मसले में अदम इख्तिलाफ की बात की, न कि नफ्स कुर्बानी के मसले में। जैसे हकीके के मसले में इब्न क़त्तान ने कहा कि इख्तिलाफ का इल्म नहीं है जुड़वा बच्चे के हकीके में, इसका यह मतलब नहीं कि नफ्स हकीका में इख्तिलाफ की वो नफी कर रहे हैं। जी ठीक है, आप मुझे कोई एक आलिम दिखा दीजिए 50 साल पहले का जो भैंस की कुर्बानी को नाजायज कहता। खुद गुलाम मुस्तफा ज़हीर अमनपुरी कायल है भैंस की कुर्बानी की। अबू यहया नूरपुरी रज़ाउल्लाह बिल करीम मदनी आपने लिखा है आई एम अहले हदीस। जी जी। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ के हैं? दिल्ली, आपके मदरसा के पास से ही हूँ। ठीक है, सनाबिल के पास ना? सनाबिल के पास से ही है। हाँ, तो ईद की नमाज आप पढ़ते होंगे सनाबिल में? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। तो ईद की नमाज में कितना खुतबा पढ़ते हैं? कितना खुतबा होता है? 2 होते हैं। 2 होते हैं? अरे भाई आप होश में हैं? 2 खुतबा जुमा में होता है। रहमानी साहब देते हैं खुतबा हमारे यहाँ तो। रहमानी साहब 2 खुतबा देते हैं? एक ही देते हैं। एक ही देते हैं भाई, मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। आप ऐसे इदारे के बारे में बोल रहे हैं जहां मैं खुद रह चुका हूँ जी। तो अहले हदीस ईद के खुतबा में एक ही खुतबा देते हैं। और 12 तकबीरात होती हैं हमारे यहाँ। अरे भाई तकबीरात की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, ईदैन के खुतबे में अहले हदीस एक खुतबा देते हैं। ठीक है जी जी जी। वो आप एक छोटा, जी बोले। आप पूरे जो है 1400 साल में किसी एक आलिम का कौल दिखा दीजिए कि ईदैन में एक खुतबा है। अच्छा, याद रहे कि इमाम इब्ने हज़्म रहमुल्लाह ने ईदैन के खुतबे के बारे में कहा कि 2 खुतबा है, इसमें मुझे किसी इख्तिलाफ का पता नहीं है। वैसे इमाम अहमद रहमुल्लाह की जो बात है ना, वैसे इमाम इब्ने हज़्म ने लिखा है, वो भी इजमा वाली किताब में, कि ईदैन में 2 खुतबा है, इसके खिलाफ में कुछ नहीं जानता। तो ईदैन में एक खुतबा आप पढ़ते हैं, एक खुतबा अहले हदीस पढ़ते हैं। आप पूरे 1400 साल की फ़िक़ही तारीख में एक कौल बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि ईदैन में एक खुतबा है। अहले हदीस जो हिंदुस्तान के अहले हदीस है, वो भी पिछली 1 सदी के अंदर, उनका ये कहना है कि ईदैन में एक खुतबा है। और मैं भी वो कहता हूँ, मैं भी इसका कायल हूँ, क्योंकि सही बुखारी वगैरह की हदीस से एक ही खुतबे का सबूत है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने भी उसको अपनाया है, लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह तो हमारे दौर के हैं, हमारे बचपन में वो जिंदा थे। लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ, 1400 साल इस्लाम की तारीख में आप एक हवाला बता दें जो ईद में एक खुतबे का कायल हो। तो हम क्यों कायल हैं? भैंस से बड़ा मसला ये मेरे भाई, ये तो भैंस से बड़ा मसला है। तो हम क्यों कायल हैं? भैंस से बड़ा मसला ये। तो वो अगर आप मान रहे हैं तो भैंस के बारे में आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, क्यों बताएं फिर, क्यों मान रहे हैं? ये डाउट है। अहले हदीस उलमा में मौलाना जो बहुत बड़े एक मुहद्दिस हमारे गुजरे, हाफिज अब्दुल्ला मुहद्दिस रोकड़ी, उन्होंने भैंस की कुर्बानी के अदम जवाज का फतवा दिया है। बल्कि आप बात कर रहे थे इजमा की, तो खुद हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब ने, गर्चे कि वो इसके कायल हैं, पर उन्होंने अपने फतवे में क्या लिखा है, ताहम चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम अजमईन से सराहतन भैंस की कुर्बानी का कोई सबूत नहीं, लिहाजा बेहतर यही है कि भैंस की कुर्बानी ना की जाए, बल्कि सिर्फ गाय, ऊंट, भेड़, बकरी ही की कुर्बानी पर इख्तिफा किया जाए। इसी में एहतियात है। भाई एहतियात का मतलब क्या है? एहतियात का मतलब कि वो उसको इख्तिलाफी मसला मान रहे हैं। अगर वो उसको इख्तिलाफी नहीं मानते तो इसको एहतियात नहीं मानते। तो इससे हाफिज जुबैर अली ज़ई का भी मौक़िफ़ ये समझ में आता है कि वो तलफ़ी तो कम से कम मानते हैं। अहले हदीस भाई, मैं आपकी एक मनहजी इस्लाह कर लूं, मनहजी या कह ली तासीली इस्लाह कर लूं। ये जो आप मुतालबा कर रहे हैं ना कि 1400 साल में किसने कहा, ये मुतालबा
कब करना जायज है, कब करना नाजायज है, कब करना दुरुस्त है, कब करना दुरुस्त नहीं, ये आपको समझना होगा। एक तहसीली मसला है, ये इल्मी असालत का मसला है कि ये इतने सवाल बड़े कब उलमा होता है। मतलब आप सुनिए, आप सुनिए, अगर आप जी मेरी बात सुनिए, आप अगर हम्म, किसी मसले में इजमा है तो आप ये सवाल कर सकते हैं, हम्म, तो आप ये सवाल करने का आपको हक है कि आपसे पहले किसने ये बात कही है, ये सवाल करने का हक है। हम्म, लेकिन अगर किसी मसले में इजमा नहीं है, हाँ उस मसले में आप ये सवाल नहीं कर सकते कि आपसे पहले किसने कहा। और यहां मसला सिर्फ इजमा का नहीं है, यहां सलफ का मसला है। मैंने शुरू ही में कहा कि भैंस की कुर्बानी न कुरान से साबित है, न हदीस से साबित है। और कुरान और हदीस से हवाले पढ़ के कुछ लोग उसका एक फहम कशीद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो हमारा मनहजी मसला है कि हम कुरान और हदीस के फहम में, तफसीर में उस फहम को तरजीह देते हैं जो सलफ से साबित हो। सलफ में सहाबा, ताबीन, अतबाए ताबीन, जो ये जिन 3 तबकात को अल्लाह के नबी ने सनद दी है, उनमें से किसी तबके के लोग, किसी भी तबके के लोग भैंस की कुर्बानी के कायल नहीं है। बल्कि सबसे अहम नुक्ता यह है कि ताबीन और अतबाउत ताबीन ने भैंस की ज़कात का फतवा दिया। ताबीन वो लोग नहीं है जिन्होंने भैंस नहीं देखा। ये मैं इस पे जोर दीजिएगा। बाद लोग क्या कहते हैं कि आप लोग ताबीन का हवाला मानते हैं, उनके जमाने में भैंस थी नहीं। अरे भाई, भैंस में ज़कात का फतवा दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ताबीन और अतबाउत ताबीन, जो असल सलफ, जिनका फहम हुज्जत है, मेयार है, वो जब भैंस को देखते हैं, भैंस का नाम सुनते हैं, तो फौरन फतवा देते हैं इसको ज़कात में लिया जाएगा। लेकिन वो कुर्बानी में फतवा नहीं देते। क्या वजह? हालांकि हालात उसके भी मुतकाजी हैं। अगर कैसा कोई माने मौजूद होता ना तो भी बात मान ली जाती, कोई माने मौजूद नहीं है, हालात उसके मुतकाजी हों। और ये उसूली बात है कि सलफ में, आयदे रसालत में, आयदे साहबा में अगर किसी काम करने के हालात मौजूद हो, काम नहीं किया गया, तो उसका तर्क ही सुन्नत है। सुन्नते तरकिया भी कोई चीज होती है, सुन्नते तरकिया भी कोई चीज होती है। तो जब सलफ ने फर्क किया है, सलफ ने भैंस की कुर्बानी, भैंस को ज़कात में लिया है, कुर्बानी में नहीं लिया। हम भी उसी सलफ पे रहेंगे, उसी फहम पे रहेंगे। ये हमारा मनहज है, ये हमारा उसूल है, हम उससे नहीं हटेंगे। बात की पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज हदीस से साबित होगी हम वही मानेंगे, जो चीज हदीस से साबित नहीं होगी पूरी दुनिया करे हम नहीं मानेंगे। मैं एक मिसाल और आपको दे दूं। बच्चा पैदा होता है, उसके कान में अजान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपकी क्या राय है? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बिल्कुल। मैं इसका नहीं देना चाहिए। आपसे पहले किसने बात कही कि नहीं देना चाहिए बच्चे के कान में अजान? आपने कही है, मैं आपको दलील से तसल्ली। अरे भाई मेरी बात छोड़ो यार, मेरी बात छोड़ो। ये 1400 साल दौर में किसने कहा कि बच्चा पैदा हो तो अजान नहीं देना चाहिए? बल्कि इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ने तो क्या लिखा, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ने लिखा है सुनन तिरमिजी में कि इसी पर उम्मत का अमल है। और उस इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह के उस बयान को लेकर बाद लोगों ने इजमा का दावा किया। तो आप बताइए कि जो है कान में अजान देना चाहिए, किसने इसका इनकार किया? सहाबा ने दिया नहीं है ना, क्योंकि हदीस ज़ईफ है, और ताबीन ने नहीं दिया। ये कहते हैं भाई, जब हम, हालांकि देखिए हिंदुस्तान में बहुत सारे अहले हदीस इस पे अमल करते थे, लेकिन जब उनको ये पता चला ना कि ये हदीस ज़ईफ है तो छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज साबित हो, हमारा अमल हो रहा हो, अगर हमें पता चलेगा कि हदीस से साबित नहीं, पूरी दुनिया अमल करे, पूरी दुनिया अमल करे, हम उसको नहीं मानेंगे। समझ रहे? जी, पूरी दुनिया अमल करे, हम उसको नहीं मानेंगे। जी, मैं शाहीन बाग में रहता हूँ। शाहीन बाग में ही सनाबिल है ना, आपका जो मदरसा है, जानते होंगे आप शाहीन बाग का नाम। तो मैंने 7 साल गुजारा मैंने वहाँ पे। हाँ जी, मैं वहीं पे रहता हूँ। तो मेरा जैसे कि मेरा सवाल बस मतलब गुलाम मुस्तफा ज़हीरी भी तो एक मुहद्दिस का दर्जा रखते हैं, तो वो भी अब मतलब भैंस की कुर्बानी, मैंने खुद हिस्सा ले लिया भैंस की कुर्बानी में। अब मैं क्या? अरे भाई आप उनकी बात सुनिए, आपको लगता है उनकी बात सही तो मान लीजिए। आप मुझसे बात कर रहे हैं ना इस वक्त, अगर आपको उनकी दलील समझ में आ रही तो उनको मान लिया, हम थोड़ी मानेंगे। हम क्यों माने भाई? हमारे नजर में ना कुरान से सबूत, ना हदीस से सबूत, ना सहाबा से सबूत, ना ताबीन से सबूत, ना अतबाउत ताबीन से सबूत। बस यही हमारी असल दलील है और असल मेयार है। इसके बाहर आप तो किसी का हवाला लोगे तो हम कैसे मानेंगे? शेख जुबैर अली ज़ई साहब, जिनको उस्ताद माना जाता है इन हजरात का, जिनका आप नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि वो खुद कहते हैं कि जो असल उनके नजर में जो हुज्जत है वो सहाबा है और उसके बाद के ताबीन है। उसके बाद के उलमा जैसे इब्न तैमिया रहमुल्लाह, दूसरे लोग, वो खुद उनको जो है हुज्जत नहीं मानते। तो भाई हम ये नहीं कहते कि बाद के उलमा की कोई हैसियत नहीं, बहुत बड़ी हैसियत है, बल्कि हम अपने फहम पर उनके फहम को तरजीह देते हैं। तो खैरुल कुरान के बाद की उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि हम अपने फहम के मुकाबले में उनके फहम को बरतर कहते हैं। लेकिन जब उनका फहम सलफ के फहम से टकराएगा तो हम सलफ के फहम को उन पर बरतरी देंगे, सलफ के फहम को उन पर हम जो है राजी करार देंगे। तो भैंस की कुर्बानी के मसले में अपनी फहम की बात नहीं कर रहे हैं। जो सलफ है, सहाबा, ताबीन, अतबाउत ताबीन, ये फर्क करते हैं।
भैंस की ज़कात तो देते, कुर्बानी नहीं करते, इसलिए हम उनके फहम को पूरी उम्मत पर तरजीह देंगे बाद के लोगों पे। चलिए ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या बोलते हैं, मतलब मैं भी शाहीन बाग का वहीं से पढ़े तो अरे भाई, खुशी हुई शाहीन आपसे बाग मैं भी रह चुका हूँ, आप क्यों बार बार शाहीन बाग के क्यों हवाला दे रहे हो? वहां पर रहते हैं, वहां की हर गली घूम चुका हूँ मैं, पूरा एरिया घूम चुका हूँ। जी, चलिए 6-7 साल चलिए रह चुका हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। अच्छा अभी ये एक आखिरी गेस्ट होंगे शायद, ये कुर्बानी वाजिब नाम रखे हैं इन्होंने। i+ TV इख्तिलाफ का हल, इस चैनल का ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहां से अगर आपके कुछ सवालात एतराज़ात है तो पूछ सकते हैं। बुधवार वेडनेसडे के दिन रात में लाइव स्ट्रीम होती है।